भाषा शिक्षण बाइलिंगुअल ट्रांसलेटेड न्यूज के नए सत्र में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे विधि, साहित्य, डिजिटल दुनिया की ताज़ा खबरों का अनुवाद। Facebook parent Meta Platforms said on March 14, 2023 it would cut 10,000 jobs just 4 months after it let go 11,000 employees, the first big tech company to announce a second round of mass layoffs. 11,000 कार्मिकों की छंटनी के अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं कि दिनांक 14 मार्च 2023 को फेसबुक पोषक मंच मेटा ने कहा कि यह 10,000 लोगों छंटनी करेगा। यह पहली तकनीकी कंपनी है जिसने दूसरी बार छंटनी की घोषणा की है। Prime Minister Narendra Modi's radio broadcast, Mann Ki Baat, will complete its 100th edition on April 30th, and All India Radio is set to launch a unique campaign from March 15th to focus on the impact of the program on the transformation of India. 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रसारण मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर दिनांक 15 मार्च से ऑल इंडिया रेडियो एक विशिष्ट अभियान शुरू करने जा रहा है जो भारत के परिवर्तन यात्रा में इस कार्यक्रम के प्रभावों पर केंद्रित होगा। तारांकन Google is testing a process to block news for some users in Canada, potentially preparing for the enforcement of the Online News Act. तारांकन कनाडा में कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए समाचार ब्लॉक करने की प्रक्रिया का गूगल परीक्षण कर रहा है। यह संभावित रूप से ऑनलाइन समाचार अधिनियम के प्रवर्तन की तैयारी के कारण कर रहा है। The Online News Act, or House of Commons Bill C-18, introduced in April by Justin Trudeau's Liberal government, laid out rules to force platforms like Meta's Facebook and Google to negotiate commercial deals and pay news publishers for their content. जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार द्वारा अप्रैल में पेश किया गया ऑनलाइन न्यूज एक्ट या हाउस ऑफ कॉमन्स बिल C-18 का उद्देश्य मेटा के फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफार्मों को वाणिज्यिक सौदों पर बातचीत करने और समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए नियम निर्धारित करता है। Center begins process for amendments in IPC, CRPC and Indian Evidence Act. केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ किया। The government has initiated the process for comprehensive amendments to criminal laws like the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 in consultation with all stakeholders, Minister of State for Home Ajay Kumar Mishra told the Lok Sabha. गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसे आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। Tamil author Perumal Murugan's novel, Paya, is among 13 books from across Asia, Africa, Europe and Latin America to make it to the longer list of the International Booker Prize 2023, announced by the Booker Prize Foundation here on Tuesday. बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को घोषित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की सूची में तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास पाया भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका सहित 13 किताबों में शामिल है। Murugan, 56, makes it to the prestigious list with his 2016 book, Pai, translated from Tamil by Aniruddhan Vasudevan, becoming the first Tamil writer to make it to the longer list of 13 works. इस सम्मानजनक सूची में 13 कृतियों में स्थान पाने वाली 56 वर्षीय मुरुगन की 2016 की पुस्तक पाया पहली तमिल पुस्तक का अनिरुद्धन वासुदेवन ने तमिल से अनुवाद किया था। In recent years, India has made great strides in its digital strategies and data governance. हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अपने डिजिटल रणनीति और आंकड़ा संचालन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। India has embraced technology and digitalization to drive economic growth and to improve the lives of its citizens. भारत ने अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास के लिए तकनीकी और डिजिटलीकरण को अपनाया है। However, as the country continues to evolve, it must also ensure that its digital strategies and data governance are inclusive, transparent, secure, and conducive to sustainable development. तथापि जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी डिजिटल रणनीतियां और डाटा संचालन विशिष्ट, पारदर्शी, सुरक्षित हो तथा समावेशी एवं सतत विकास के अनुकूल हो।